ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ممبئی پولیس کو ایک واٹس اپ آتا ہے جس میں بتایا گیا ممبئی شہر پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، اس دھماکے سے پورا شہر دہل جائے گا، 26/11 حملے کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ واٹس اپ میں یہ ڈیٹیلز بھی بتائی گئی کہ 34 ہیومن بم ہے، یعنی 34 انسانی بم ہے، 34 گاڑیوں میں بموں کو فٹ کر دیا گیا ہے، نصب کر دیا گیا ہے، 400 kg RDX ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 14 دہشت گرد پاکستان سے ممبئی پہنچ چکے ہیں اور پاکستان کی کالعدم تنظیم لشکر طیبہ اس دہشت گردانہ حملے کو انجام دے رہی ہے۔ جیسے ہی ممبئی ٹریفک پولیس کے آفیشیل واٹس ایپ پر یہ میسج آتا ہے، واٹس ایپ آتا ہے، ممبئی کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، ہڑکمب مچ جاتا ہے اور پولیس فوراً چھان بین شروع کر دیتی ہے۔ ممبئی کو ہائی الرٹ رکھ دیا جاتا ہے کہ آخر کون یہ دھمکی دے رہا ہے، کون دوبارہ ممبئی شہر پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اور جب پولیس چھان بین کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے کہ واٹس ایپ کس نے بھیجا ہے، تو نام آتا ہے فیروز کا، لیکن اصل میسج بھیجنے والا فیروز نہیں ہے۔ جو ممبئی شہر کو دھمکی دے رہا ہے بموں سے اڑانے کی، 26/11 کا ریکارڈ توڑنے کی، وہ فیروز نہیں بلکہ اشونی کمار ہے۔ یہ اشونی کمار کون ہے، اس کا پورا ڈیٹا کیا ہے اور کیوں یہ ممبئی شہر پر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، آگے میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ جب بات آ گئی ہے ممبئی کی، تو ذرا ممبئی کے بارے میں جان لیجئے کہ ممبئی انڈیا کا اکنامک کیپٹل ہے۔ سب سے زیادہ جو انڈیا کی GDP میں جس اسٹیٹ کا اور شہر کا کنٹریبیوشن ہے وہ ممبئی ہے، اور ممبئی لاکھوں لوگ جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ آپ کے لیے بھی ضروری ہے پیسہ کمانا، اپنی انکم کو بہتر کرنا، اور پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے شیئر مارکیٹ میں پیسہ بھی لگانا۔ شیئر مارکیٹ میں جو حلال پروڈکٹس ہیں، جو حلال کمپنیاں ہیں، آپ وہاں مارکیٹ وولف ایپ کے ذریعے اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اس ایپ کے بارے میں یہاں جان لیجئے۔ بہت سے لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ اپنی انکم کو کیسے بڑھایا جائے، اس لیے میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں ایک شاندار ایپ سے جس کا نام ہے مارکیٹ وولف۔ مارکیٹ وولف ایک SEBI رجسٹرڈ ایپ ہے جہاں آپ ٹریڈنگ کی شروعات صرف 99 روپے کے لائف ٹائم فیس سے کر سکتے ہیں، اور یہاں کوئی ایئرلی مینٹیننس چارج یا ہڈن چارج نہیں ہے۔ اس ایپ کے ذریعے مارکیٹ چاہے اوپر جائے یا نیچے جائے، آپ دونوں ہی سچویشن میں پیسے کما سکتے ہیں، اور یہ ہر کسی کے لیے ہے جو اپنی انکم کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے پرفیکٹ ہے اور کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہاں کھولا مارکیٹ وولف کا ایپ اور پن ڈال کر لاگ ان کر لیا۔ اب ادھر ان کا فالو ٹرینڈ کا فیچر ہے، اس میں آپ کو ریئل ٹائم میں وہ ٹریڈز دکھائی دیتے ہیں جس میں لوگوں نے پروفٹ بنایا ہے اور جو ہائی مومنٹم میں ہیں، اور آپ یا پروفٹیبل ٹریڈز ایک ٹیپ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں نے بس کلک کیا فالو ٹرینڈ پر اور ٹریڈ کو پلیس کیا اور بس ٹریڈ چالو ہو گیا میرا۔ یہاں بیٹھ کر آپ اپنا ٹریڈ لائف مانیٹر بھی کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ یہاں بہت چھوٹی انویسٹمنٹس اماؤنٹ سے بھی ٹریڈنگ کی شروعات کر سکتے ہیں، جہاں دوسرے ایپ پر آپ کو 3 گنا زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے۔ اس کا ایک انبلٹ فیچر بھی ہے اسٹاپ لاس کا، جو آپ کو نقصان سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کا ٹریڈ لاس کے لیول پر پہنچ جاتا ہے تو خود ہی اسٹاپ لگا دیتا ہے ٹریڈ پر، تاکہ آپ کا زیادہ نقصان نہ ہو سکے، اور اس کا جو بروکریج ہے وہ بھی انڈسٹری میں ون آف دی لویسٹ بروکریج ہے۔ مطلب یہ آپ کے لیے ہر طریقے سے بہت ہی شاندار اور اچھی ڈیل ہے۔ دیکھیں، یہاں میں نے اسٹاپ ٹریڈ پر کلک کیا اور اتنی آسانی سے یہاں 1166 روپے کا پروفٹ بک ہو چکا ہے، وہ بھی اتنے کم سمے میں۔ اب آپ بنا گیس ورک کے ٹرینڈ کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سب کموڈیٹیز بھی، یعنی کہ گولڈ، سلور، کروڈ آئل یا نیچرل گیس بھی اتنی آسانی کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہو، صبح 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ وولف ایپ آپ کو فری ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، مئی کے مہینے میں ٹریڈرز نے 57,170 اور جون کے مہینے میں 70,468 کا پروفٹ بک کیا، اور دیکھیں ان لوگوں نے صرف ایک ہی دن میں 11,850 روپے کا پروفٹ بک کروایا، ان لوگوں کا صرف ان کی ایکسپرٹ ریکمنڈیشن کے ذریعے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پروفٹ پر مارکیٹ وولف کا کوئی بھی کمیشن نہیں لگتا، یہ پورا پروفٹ آپ کا ہوتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آتا ہے۔ مارکیٹ وولف ایپ اب یوز کرنا بہت ہی سمپل ہے، آسان اور سیکیور ہے، تو دیر کس بات کی؟ لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور کمنٹ میں بھی پن کر دیا ہے۔ گو اینڈ چیک آؤٹ مارکیٹ وولف ابھی۔
और आइए मैं आपको बताता हूं कि फिरोज अहमद के नाम से मैसेज भेजने वाला अश्वनी कुमार कौन है, कहां से ताल्लुक़ रखता है और क्यों मुंबई ट्रैफिक पुलिस को इसने इस तरह का मैसेज भेजा। इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट शाया की उसमें बताया गया कि अश्वनी कुमार दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 79 में रहता है। ये दरअसल बिहार का रहने वाला है, बिहार के पटना का, लेकिन 2020 से ये नोएडा के सेक्टर 79 में रहता है और ये एस्ट्रोलॉजर है, यानी नुजूमी है, जो हाथ देखकर बताता है कि कितने बच्चे पैदा होंगे, कब शादी होगी। और दरअसल एक तरह का ढोंग होता है। कुछ बेवकूफ़ लोग इसका शिकार हो जाते हैं और लाखों रुपया लोग इस तरह से कमा लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि फिरोज अहमद एक शख्स जिसका दोस्त था अश्वनी कुमार का, और 2023 से दोनों की लड़ाई चल रही थी। फिरोज अहमद ने अश्वनी कुमार के खिलाफ 2023 में मुकदमा किया था, केस किया था, और अश्वनी कुमार को 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। अब अश्वनी कुमार फिरोज अहमद से बदला लेना चाह रहा था। अब उसको लगा कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस्लामोफोबिया का रास्ता अपनाया जाए, फिरोज अहमद को दहशतगर्द बताया जाए, क्योंकि अगर फिरोज अहमद पर दहशतगर्दी का केस साबित हो जाएगा, इसका लिंक पाकिस्तान से साबित हो जाएगा, तो फिर इस पर UAPA का मुकदमा लग जाएगा, फिर अदालत से इसको ज़मानत नहीं मिल पाएगी, इसको अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी, सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। तो बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीक़ा नज़र आया अश्वनी कुमार को, और उसने फ़िरोज़ अहमद के नाम से बाज़ाब्ता एक व्हाट्सएप बनाया, एक नए नंबर से फ़िरोज़ अहमद का उस पर नाम लिखा और मुंबई ट्रैफिक पुलिस को ये मैसेज कर दिया। लेकिन जब मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता चला कि मैसेज भेजने वाला अश्वनी कुमार है। नोएडा से मुंबई पुलिस ने अश्वनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, उसको अदालत में भी पेश किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो घटिया चेहरा है, जो घटिया एजेंडा है, उसको समझिए। अश्वनी कुमार को फिरोज अहमद से दुश्मनी थी, लड़ाई थी, वो दुश्मनी किसी और तरीके से भी निकाल सकता था, लेकिन उसने फिरोज अहमद को दहशतगर्द बनाकर पेश किया, क्योंकि उसको पता है कि जो इंडिया की पुलिस है, ये जो इंडिया का सिस्टम है, अगर वहाँ दहशतगर्दी के नाम पर किसी मुसलमान का नाम आ जाता है, दहशतगर्दी की खबर से किसी मुसलमान का लिंक हो जाता है, तो वो खबर बहुत बड़ी बन जाती है, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है और फिर उसको ज़मानत नहीं मिल पाती है, उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरे इलाके में उसकी ज़िल्लत और रुसवाई होती है। इसलिए इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। और अश्वनी कुमार कोई पहला शख्स नहीं है जिसने इस तरह की घटिया हरकत की हो, बल्कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रही है। अभी 1 महीना पहले की बात है, इंग्लैंड में एक फ़्लाइट में अभिषेक नाम के एक शख्स ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, ट्रम्प मुर्दाबाद का नारा लगाया, इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाया, और उसका एजेंडा और मकसद था मुसलमानों को बदनाम करना। इसी तरह की खबर इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आई है। बल्कि जासूसी के जितने केसेस सामने आते हैं, बहुत सारे अफसरान जासूसी के केसेस में पकड़े जाते हैं और वो मुसलमान नहीं होते। बहुत सारे पुलिस वाले जासूसी के केस में पकड़े जाते हैं, ISI से इनका रिश्ता होता है, पाकिस्तान को देश की ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और जब इनका सबूत पकड़ा जाता है, NIA इनको गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर मीडिया का नैरेटिव ये होता है कि ये हनी ट्रिप का शिकार हो गए थे, यानी पाकिस्तान से किसी खूबसूरत महिला ने इनको फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैसेज किया और उसकी मोहब्बत में ये शिकार हो गए और इस तरह ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने लगे। यानी ये देश से जानबूझकर गद्दारी नहीं कर रहे थे, पैसा लेकर आर्मी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, लोकेशन लीक नहीं कर रहे थे, बल्कि औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इश्क के जाल में फंसकर इस तरह की हरकतें कर रहे थे। और वहीं पर कोई मुसलमान होता है तो कहा जाता है कि ये पाकिस्तान प्रेमी है, पाकिस्तान से इसको मोहब्बत थी, इसलिए आर्मी की या देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। तो ये मीडिया का नैरेटिव होता है। अब अश्वनी कुमार के मामले में भी यही हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ही अश्वनी कुमार के पास से जो चीज़ें बरामद हुई है वो बहुत ख़तरनाक है, और अगर किसी मुसलमान के पास से इस तरह की चीज़ें बरामद होती तो अभी तक उस पर UAPA लग चुका होता, NSA लग चुका होता और उसका मीडिया ट्रायल भी जारी रहता, वो देश का ख़तरनाक दहशतगर्द माना जाता। अब जो इसके पास से चीज़ें बरामद हुई है उसके मुताबिक 7 मोबाइल फ़ोन इसके पास पकड़े गए हैं, 3 सिम कार्ड इसके पास पकड़ा गया है,
6 मेमोरी कार्ड होल्डर इसके पास पकड़े गए हैं, एक इंटरनेशनल सिम स्लॉट इसके पास पकड़ा गया है, 2 डिजिटल कार्ड इसके पास पकड़ा गया है और 4 सिम कार्ड होल्डर भी इसके पास पकड़े गए हैं। यानी इतनी सारी चीज़ें इसके पास पकड़ी गई है, लेकिन इसके बावजूद अब इसको दहशतगर्द नहीं बताया जा रहा है, बल्कि नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एक मुसलमान को बदनाम करने के लिए इसने इस तरह की हरकत की थी। लेकिन जो कुछ इसके पास पकड़ा गया है वो कम नहीं है इसको दहशतगर्द साबित करने के लिए। अगर किसी मुसलमान का लिंक जोड़ा जाता है अलकायदा से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके पास अगर सिर्फ 2 सिम कार्ड पकड़ा जाता है, तब भी उसको बहुत बड़ा दहशतगर्द बना दिया जाता है। इसके पास 7 सिम कार्ड पकड़े गए हैं, 7 मोबाइल फ़ोन पकड़े गए हैं और मुल्क से बाहर का सिम कार्ड इसके पास पकड़ा गया है। इसके बावजूद इसको लश्कर तैयबा का दहशतगर्द नहीं बताया जा रहा है। आखिर क्यों? इसके घर पर अभी तक बुलडोज़र नहीं चला है, आखिर क्यों? इसके रिश्तेदारों में से किसी को डिस्टर्ब और परेशान नहीं किया गया है, आखिर क्यों? या इसको दहशतगर्द भी नहीं लिखा जा रहा है और मीडिया में टीवी चैनलों पर डिबेट का तो ये मौजू ही नहीं है, क्योंकि इसका असल नाम सामने आ चुका है और वो है अश्वनी कुमार। तो ये देश की मीडिया की असलियत है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि यहाँ नाम देकर, मज़हब देकर किसी को दहशतगर्द बताया जाता है और कोई दहशतगर्द होता है, इसके बावजूद उसको दहशतगर्द नहीं बताया जाता है। अच्छी तरह मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि 2006 के बाद जब देश में बम धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ और लगातार देश के मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाके हुए, 2006 में जून के महीने में मुंबई में लोकल ट्रेनों में बम धमाका हुआ, उसके बाद मालेगांव में बम धमाका हुआ, फिर अजमेर में बम धमाका हुआ, हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ, फिर 2008 में मालेगांव में बम धमाका हुआ, 2008 में मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ और कई इलाकों में मुंबई में हमला हुआ जिसको 26/11 का हमला कहा जाता है और लगातार पूरा देश इस तरह के हमलों का शिकार था। तो मीडिया जानबूझकर इन तमाम हमलों का इल्ज़ाम सिमी पर लगा रही थी, इंडियन मुजाहिदीन पर लगा रही थी, मुसलमानों को इन तमाम हमलों का दहशतगर्द बताया जा रहा था और पुलिस ने भी देश के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमानों को गिरफ़्तार किया, उनको दहशतगर्द बताया। लेकिन धीरे धीरे अदालतों से तमाम मुसलमान बरी हो गए। लोअर कोर्ट ने तो कुछ मुसलमानों को दहशतगर्द साबित भी कर दिया, फांसी की सज़ा सुना दी, उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम लोग बेकसूर पाए गए और असल मुजरिम कौन है अभी तक उनके नाम सामने नहीं आ सके हैं और असल मुजरिमों को इसी तरह बचाया जाता है जिस तरह यहाँ अश्वनी कुमार को बचाया गया है। तो मीडिया का जो असली और घटिया चेहरा है उससे आपको बाखबर रहने की ज़रूरत है और आपका अपना मीडिया हाउस होना ज़रूरी है, आपका अपना मीडिया आउटलेट होना ज़रूरी है। मिल्लत टाइम्स जैसे मीडिया हाउसेस को सपोर्ट करना ज़रूरी है और इसलिए मैं हमेशा आपसे अपील करता हूं कि अब वक्त आ गया है कि मिल्लत टाइम्स की आप मेंबरशिप ले लीजिए, मिल्लत टाइम्स का हिस्सा बन जाइए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपये वाला ही प्लान ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों जगह पर दस्तयाब है और आप इस ऐप के ज़रिए अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, तो बस क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए अभी।